Hello, students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and I welcome you all to our English class. In the previous video, we started with our Unit 6, that is the Unexplained, for Term 2 syllabus. We started the first section, that is Lob's Girl, and we also completed a little bit portion of that story. So just brief it up for you and then we would move towards the remaining portion of this story. So this is a story about a dog who finds his owner. Normally the owner finds a dog for himself, but here the dog finds himself an owner. So the dog's name is Lob, and the girl who would become his owner is named Sandy. Sandy lives with her family in Cornwall, which is a fishing town in the south east of England. They went on a beach during the summertime when Sandy was 5. Her brother Don was 12 years old, and she had twins who were just 3 years old, and they were named Tess and Tim. Her father name was Bert Panigale and her mother name was Jean Panigale. They were enjoying the beach and the river and the sun, and at that moment suddenly something unexpected happened over there. A large new member ended up over there who would be their pet. Okay, so suddenly a dog appeared from nowhere. We don't know from where did it come, and it bounced with Sandy's midriff, that means the front part of the body, and it covered her with sand, and the dog started wiping off that sand from her face with his tongue. And when Sandy opened the eyes, she saw that there is a large and bouncy young Alsatian or German Shepherd with topaz eyes, black tipped prick ears, and a thick soft coat and a bushy black tipped tail. So that was the description of Lob. Now, Lob was actually the dog of another owner, and his name was Mr. Dodsworth. Okay, he just meant to play with the girl, and Sandy was not at all annoyed with with the dog's behavior. In fact, she loved that dog, and at the very moment she started playing with the dog, and dog was also happy playing with Sandy. So you can say that there was love at first sight between both of them. And also the twins were enjoying the company of the dog, but as the time went by they had to go home for tea, and they started looking at the Lob because they didn't know when they would be meeting that dog again. So both the twins wanted to play with the dog, but Sandy told them that the owner of this dog, whose name is Mr. Dodsworth, he is from Liverpool and he is going to stay here only till Saturday. That means he might be there for vacation. वो सिर्फ vacation के लिए वहाँ आए थे, तो वो Saturday तक ही रहेंगे वहाँ पे. Okay. एंड सो अभी वो लोग हर रोज़ उसके साथ नहीं खेल पाएंगे. नाउ द प्लेस वेयर पेनेगली फैमिली लिव्ड, दैट वाज कॉर्निश फिशिंग विलेज, जैसे मैंने आपको बोला कि वो लोग कॉर्नवॉल में रहते थे, विच इज़ सराउंडेड बाय रॉक्स एंड क्लिफ्स एंड अ स्ट्रिप ऑफ बीच एंड अ लिटिल राउंड हार्बर. हार्बर मैंने आपको बताया था, उसका मतलब होता है जहाँ पे शिप्स को रोका जाता है, मतलब जहाँ वो लोग हॉल्ट लेते हैं और स्टे करते हैं. ओके, और वहाँ आसपास में क्या है, बड़े बड़े पाम ट्रीज ग्रो होते हैं, एंड द हाउसेस आर वाइट वॉश्ड, और वो स्टोन के बने हुए होते हैं. एंड द विलेज वॉज अप्रोच्ड बाय अ नैरो स्टीप
twisting hill road and guarded by a notice that said low gear for 1.5 miles and dangerous to cyclists. The road was quite narrow क्योंकि आज के आसपास जो था वो क्लिफ एरिया था, काफ़ी स्टीप था वो रास्ता, मतलब इट वॉज क्वाइट स्लैंटिंग, ओके, जैसे स्लोप होता है वैसे ही, लेकिन ये बहुत स्टीप होता है, मतलब उसका जो चढ़ाव होता है वो काफ़ी स्ट्रेट होता है, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड हिली एरिया है पूरा, इसीलिए वहाँ पे लिखा जाता है कि यू हैव टू ड्राइव वेरी स्लो. Now let's move on towards the next portion. So I request you students to open your book, that is Pathways, and page number 129. The Bengali children went home thinking they had seen the last of Lob, but they were much mistaken. The whole family was playing cards by the fire in front room after supper when there was a loud thump and a crash of china in the kitchen. अभी जब ये लोग यहाँ से निकल गए for tea, right? At that time, Bengali children जो है उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने लास्ट ही टाइम देखा लॉब को, but that wasn't true. They were mistaken, मतलब they were thinking wrong. Because जब पूरी फैमिली कार्ड्स खेल रही थी in front of fire, okay, after their food, तो देर वॉज अ लाउड थम्प, मतलब एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उनका जो चाइना मतलब यहाँ पे क्या है, क्रॉकरी, द ग्लास यूटेंसिल्स यू कैन से, राइट, प्लेट्स वगैरह जो क्रॉकरी होता है चाइना का बना हुआ, दैट इज़ इट्स नॉट लाइक इट इज़ मेड इन चाइना, नॉट लाइक दैट, उसको कहा जाता है जो कांच होता है उसका टाइप है एक, ठीक है, तो उससे बनाया हुआ जो पूरा उनका ग्लासवेयर या डिनरवेयर जो भी था, it just came down because Lob came over there. My Christmas puddings, exclaimed Jean and ran out. So as soon as there was a noise in the kitchen, her mother Jean ran towards the kitchen and she was like, मेरी क्रिसमस की जो बनाई हुई पुडिंग्स है वो कोई खा गया, इसीलिए वो भाग के गई. लेकिन वहाँ जाके देखा तो क्या था, it was Lob who had bounced in through the open kitchen विंडो, जो किचन की विंडो से कूद के अंदर आ गया था. लॉब स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स एंड प्लास्टर्ड सैंडीज फेस विथ लेग्स. सो ही वाज स्टैंडिंग ऑन हिंड लेग्स. हिंड मतलब पीछे के पैर, फोर लिम्स मतलब आगे वाले, और हिंड लिम्स का मतलब होता है बिहाइंड के जो पैर, पीछे के जो पैर होते हैं उसको हिंड लिम कहते हैं. और उसने सैंडी के पूरे फेस को प्लास्टर कर दिया, मतलब पूरे फेस पर उसने अपनी टंग से लिक किया उसको. Then he did the same for the twins who shrieked with joy. Shrieked का मतलब होता है they started shouting with joy. Okay. Where does this friend of yours come from? Inquired Mr. Pengelly. So जो उसके फादर थे उन्होंने पूछा कि आपका ये जो फ्रेंड है सैंडी और वो दो ट्विंस का, वो कहाँ से आ गया सडनली, राइट? ही इज़ स्टेइंग एट द फिशरमैन्स आर्म्स, आई मीन हिज ओनर इज़, मतलब सैंडी ने क्या कहा कि वो फिशर आर्म्स जो मतलब रिजॉर्ट होगा वहाँ पे रुका हुआ है, मतलब उसका जो ओनर है वो वहाँ पे रुका हुआ है. सो ऑब्वियसली द डॉग माइट हैव ऑल्सो केम फ्रॉम देयर ओनली. देन ही मस्ट गो बैक देयर, फाइंड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, सैंडी टाई टू हिज कॉलर. और फिर फादर जो है वो काफ़ी स्टर्न थे, मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि फिर उसको वहीं पे होना चाहिए, ही शुड गो बैक देयर. तो बोला कि एक स्ट्रिंग का टुकड़ा हो तो लेके आओ एंड टाइड टू हिज कॉलर. आई वंडर हाउ ही फाउंड हिज वे हियर, मिसेस पेंगली सेड. बिकॉज ऑब्वियसली उसको थोड़ी ना मालूम था कि सैंडी कहाँ पे रहती है, बट ही फाउंड आउट हिज वे एंड ही फाउंड आउट सैंडी. सैंडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द आफ्टरनून्स गेम ऑन द बीच. फिर सैंडी ने एक्सप्लेन किया, मतलब उसकी मम्मी जो थी वो तो क्रिसमस पुडिंग्स बना रही थी, राइट? सो सैंडी ने एक्सप्लेन किया उसकी मम्मी को कि क्या हुआ था आफ्टरनून को. लॉब्स ऑनर थैंक्ड मिस्टर पेंगेली फॉर ब्रिंगिंग हिम बैक. जीन पेंगेली warned the children that they had better not encourage Lob any more. So Lob का जो ओनर था मिस्टर डॉड्सवर्थ, उन्होंने पेंगेली फैमिली को थैंक किया
उसको वापस लेकर जाने के लिए। उनको मालूम था कि उसका ओनर जो है वो कहाँ पे रुका हुआ है, इसीलिए वो लोग उसको लेके वहाँ पे चले गए। अब जीन फैंगेली वॉन्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों को वॉर्न किया कि डू नॉट एनकरेज हिम, उसको बढ़ावा मत दो कि वो वापस यहाँ पे आए। नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। सैंडी हैड फाउंड आउट दैट मिस्टर डॉड्सवर्थ वॉज टू कैच द 9:30 ट्रेन। अभी सैंडी ने पता कर लिया था कि वो जो ओनर है डॉग का, वो 9:30 की ट्रेन पकड़ने वाले हैं, ओके, दूसरे दिन सैटरडे को। सो शी वेंट आउट सीक्रेटली डाउन टू द स्टेशन। सो वो सबसे छुप के वहाँ से चली गई टूवर्ड्स द स्टेशन. She saw Mr. Dodsworth get on the train, accompanied by an unhappy-looking lob with drooping ears and tail. So वहाँ पे जाके उसने क्या देखा कि जो मिस्टर डॉड्सवुड है, इसके साथ उनका जो कुत्ता है, that is Lob, he was also going along with him, but he was quite unhappy. He didn't want to go from there, and that's why उसकी जो ears थे और उसकी जो tail थी, it was like coming downwards, falling downwards. He was not at all happy. And then she saw the train slide away. और फिर उसने क्या देखा कि धीरे धीरे ट्रेन वहाँ से चली गई. Sandy walked home miserably. She was very sad. Miserably मतलब काफ़ी sad होके वो वहाँ से चली गई. Obviously because she wanted to meet Lob, she wanted to play with Lob, but now that is not possible because he is gone. A week passed. Then one evening suddenly हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ. यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, जो पहले उसने बाउंस किया था किचन की विंडो से, वैसे ही वापस उसने दूसरी बार किया. किसने? लॉब ने. एंड देयर वॉज अ क्रैश फ्रॉम द किचन. जीन फैंगेली लीप्ड अप. शी स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द किचन, बट सैंडी वॉज अहेड ऑफ हर मदर. और सैंडी she was quite surprised with the arrival of Lob, but yes, she might be expecting somewhere कि शायद कहीं से Lob आ जाए उसको मिलने, right? But Sandy was ahead of her mother, and with eyes like stars, she had darted into the kitchen, where she and Lob were hugging one another in a frenzy of joy. Frenzy means excitement. They both were so excited and they were so happy that they both were hugging each other, right? So with eyes like stars she had darted into the kitchen. मतलब सैंडी जो थी वो उसने किचन के अंदर अपनी कौन सी आँखों से देख रही थी, वो बड़ी बड़ी आँखों से. शी वॉज स्टेयरिंग इन द किचन. और वहाँ पे उसने क्या देखा, उसकी मम्मी ने देखा, सॉरी, her mother darted in the kitchen. मतलब she was looking with her eyes which has grown big in because of anger. लेकिन वहाँ जाके उसने देखा कि Lob and Sandy were hugging each other with friends of joy. Good heavens, exclaimed Jean. How in the world did he get here? So Jean was totally surprised कि Lob कहाँ से आ गया यहाँ पे. He must have walked, said Sandy. Look at his feet. तो सैंडी ने क्या कहा कि वो चल के आया होगा, उसका पैर देखो, उसके पैर देखो. They were worn and dusty, and one has a cut on his pad. They are worn and dusty मतलब उसके पैर थक गए हैं और काफ़ी मिट्टी वाले भी है, और उसका जो पाँव का कुशन होता है, राइट, उनके पैर में जो कुशन रहता है नेचुरली, उसके अंदर कट भी है. They ought to be bathed, said Jean Fangeli. Jean Fangeli ने क्या बोला कि the dog needs the bath and it needs to be cleaned. Sandy run for a bowl of warm water while I get the disinfectant. तो उसकी मम्मी ने सैंडी को बोला go and get a bowl of warm water, और मैं disinfectant लेके आती हूँ. Disinfectant means a liquid chemical which destroys the bacteria. जैसे कि डेटॉल है, सेवलॉन है, राइट, जो हम लोग घाव हो जाता है, अगर हमको कहीं पे रैश कट हो जाता है तो गिर जाते हैं हम लोग और वहाँ पे कट हो जाता है तो मिट्टी वगैरह लग जाती है, राइट, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं. योर डैड कैन गेट द एड्रेस फ्रॉम द फिशरमैन्स टुमारो. इन द मीन टाइम ही वुड बेटर हैव अ लॉन्ग ड्रिंक एंड अ गुड मील. उसकी मम्मी ने क्या बोला कि आपके जो फादर है वो
एड्रेस लेकर आएंगे, क्योंकि वो फिशरमैन के पास रुके हुए थे, है ना, तो वहाँ रिजॉर्ट से उनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा. तब तक इन दैट टाइम limit the dog can have a good drink because it was quite cold over there, and also a good meal. Lob was very grateful for meat and having his feet washed. मतलब लॉब काफ़ी grateful था. He was thankful for the meal and his feet were also cleaned up. Then he flopped down on the hearth rug and slept with his head on Sandy's feet. He had walked all the way from Liverpool to Cornwall, which is more than 400 miles. और अच्छे से खाना वाना खा के उसका पैर क्लीन हो गया. He was clean. He took the bath and he was being bathed. Okay, he didn't took a bath by himself. Then he just slept near the Sandy's feet on her bed. He had walked all the way from Liverpool to the Cornwall. और वो क्या कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में? It was more than 400 miles. The next day, Lob's owner Dodsworth arrived to take his pet home. दूसरे दिन जो लॉब का ओनर था उनको कॉल करके रखा हुआ था. So he just came home to take his pet. That parting was worse than the first. Obviously, parting means moving away from each other. Means Sandy और लॉब का जो parting था, that was quite worse than the first one. And Lob whined मतलब it started crying. Dawn walked out of the house. The twins burst out crying, and Sandy crept up to her bedroom and lay feeling as if she was bruised all over. ये जो पार्टिंग था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था लॉब के लिए भी और सैंडी और उसकी फैमिली के लिए भी, बिकॉज ट्विन्स वर ऑल्सो क्वाइट अटैच्ड टू द लॉब. एंड सो जो ट्विन्स थे वो उन्होंने रोना चालू कर दिया था, राइट, दोनों टिम और टेस. और उनका भाई जो था वो वहाँ से निकल गया घर से बिकॉज ही डिडंट वांट टू शो हिज इमोशंस. एंड सैंडी जस्ट वेंट टू हर बेडरूम एंड शी लेड ओवर देयर बिकॉज शी फेल्ट दैट शी वॉज बीइंग बीटन अप एवरीवेयर. उससे कुछ चीज़ छीन ली गई थी, ठीक है, उसको मार मार के. शी वॉज बीइंग ब्रूज्ड एवरीवेयर मतलब उसको हर जगह से पेन फील हो रहा था, राइट. Jean Pengelly took them all into Plymouth to see the circus on the next day, and the twins cheered up a little, but nothing could cure Sandy's sore heart. दूसरे दिन जो उसकी मम्मी है वो उनको कहाँ लेके गए? She took them all into the Plymouth to see the circus, ताकि सर्कस देख के बच्चे थोड़े रिफ्रेश फील करें and they can move on with the parting of Lob. जो ट्विंस थे वो cheered up थे थोड़े, बट सैंडी जो थी उसके लिए कुछ क्योर नहीं था. उसका जो हार्ट था विच वॉज सोर मीन्स इट वॉज स्टिल पेनिंग, राइट, उसका कोई क्योर नहीं मिला. इन 10 days टाइम लॉब वॉज बैक, limping this time with a torn ear and a patch missing out of his furry coat, as if he had met and tangled with an enemy or two in the course of his 400 miles walk. And again in the 10 days period of time, Lob was again back to Sandy. और इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था. ही वॉज लिम्पिंग मतलब उसके पैर में लग गया होगा जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, राइट. सो दिस टाइम ही वॉज मोर हर्ट. उसका जो ईयर था उसमें भी टोन आ गया था. दैट मीन्स इट देयर वॉज अ कट ऑन हिज ईयर. एंड उसका जो बॉडी था उसमें से भी पूरा एक पैच मिस हो गया था. मतलब वहाँ से उसका पूरा जो कोट था, फरी कोट था, वो टोटली निकल गया था. ऐसा लग रहा था कि ही मेट एंड टैंगल्ड का मतलब ही गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट विद एन एनिमी और टू, मतलब रास्ते में कुछ और डॉग्स मिले होंगे जिसके साथ उसकी लड़ाई हो गई और उस वजह से उसको इतना लग गया था. बर्ट पैंगेली रैंग अप लिवरपूल अगेन. जो उसके फादर थे उन्होंने वापस मिस्टर डॉड्सवर्थ को कॉल किया. मिस्टर डॉड्सवर्थ सेड, आई कांट स्पेयर अवे फ्रॉम माई वर्क, प्लस एंडलेस टाइम इन पुलिस स्टेशंस एंड ड्राफ्टिंग न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स. I am too old for these ups and downs. I think, Mr. Pengelly, that it's your family he wants to stay with. You may have him as a gift. अभी इस बार जब उसके फादर ने कॉल किया मिस्टर डॉड्सवर्थ को, he said that he can't
स्पेयर अवे मतलब ही कांट रन अवे फ्रॉम हिज वर्क, और उसके साथ साथ वो पुलिस स्टेशन में नोट करवाने जाना दैट ही हिज डॉग इज़ लॉस्ट, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स डालना. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मिस्टर डॉट्सवर्थ बिकॉज ही वॉज क्वाइट ओल्ड, और वो बार बार ये आना जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था. ही वॉजंट एबल टू डू दिस अप्स एंड डाउन्स. सो उसने क्या बोला कि मिस्टर पेनगेली, आई थिंक द डॉग वॉन्ट्स टू स्टे विथ योर फैमिली, so you can have it as the gift. Alexandra's father looked at his daughter's swimming eyes. Well, then, Mr. Dodsworth, he said briskly, we will be overjoyed, and you can be sure Lob has come to a good home. Alexandra's father, right? Alexandra मतलब सैंडी, okay? उसकी कोई अलग डॉटर नहीं है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि अलेक्जेंड्रा मतलब वो उसकी जो डॉटर थी उसका शॉर्ट नेम था सैंडी. ओके, उसका एक्चुअल नेम था अलेक्जेंड्रा. तो उसकी जो डॉटर थी उसकी आंखों की तरफ देख के मतलब देयर वर टीयर्स इन हर आईज. उसके फादर ने क्या बोला मिस्टर डॉट्सवर्थ को? ब्रिस्कली, दैट मीन्स इन अ स्पीडी वे, दैट वी वुड बी ओवरजॉयड, मतलब वी आर वेरी हैप्पी टू हैव लॉब एंड यू कैन टोटली ट्रस्ट अस एंड यू कैन बी वेरी श्योर कि लॉब को जो घर मिला है वो काफ़ी अच्छा है. So that was how Lob came to live with the Pengelly family. Everybody loved him and he loved them all. But he was Sandy's dog. He slept by her bed and followed her everywhere. 9 years went by. So now Lob came home and he lived with Pengelly family. वहाँ पे सब लोग उसको प्यार करते थे और जो डॉग था वो भी सबको ही प्यार करता था. लेकिन वो डॉग किसका था? सैंडी का. मतलब वो सैंडी का ही पेट डॉग था. उसके साथ ही सोता था और जहाँ पे भी सैंडी जाए उसको फॉलो करता था. ऐसे ही 9 years स्पेंड हो गए, मतलब इट वेंट बाय. In the course of 9 years, Lob changed less than Sandy. That means लॉब में इतने सारे चेंजेस नहीं आए लेकिन सैंडी की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए. As she went into her teens, he became a little slower, a little stiffer. There was a touch of grey on his nose, but he was still a handsome dog. मतलब सैंडी जो थी वो अभी धीरे धीरे टीन्स में जा रही थी. मतलब शी वॉज ग्रोइंग यंग, राइट? शी वॉज बिकमिंग प्रिटी एंड ब्यूटिफुल. लेकिन जो डॉग था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? ही वॉज बिकमिंग स्लोअर बिकॉज ही वॉज नाउ ग्रोइंग ओल्ड. ओके, उसका बॉडी स्टिफ हो गया था, मतलब वो इतना भाग नहीं पाता था पहले जैसा. और उसका जो नोज़ था उसके ऊपर भी ग्रे का टच आ गया था, मतलब उसके जो हेयर होंगे नोज़ के वो ग्रे हो रहे थे. बट अभी भी वो कैसा था? हैंडसम डॉग था. एंड ही एंड सैंडी स्टिल लव्ड वन अनदर डिवोटेडली. मतलब दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे. ओके, वन इवनिंग इन अक्टूबर, इट वॉज अ वेट विंडी dusk. When the children came home from school, Jean Pengelly said, Sandy, your Aunt Rebecca says she is lonesome because Uncle Will Hoskins has gone out trolling and she wants you to go and spend the evening with her. अभी एक रात इवनिंग को ऐसा हुआ कि इट वॉज क्वाइट जो डस्क का टाइम था. डस्क मतलब इवनिंग टाइम जब सनसेट हो जाता है, राइट? एट दैट मोमेंट इट वॉज क्वाइट विंडी एंड वेट. और चिल्ड्रन स्कूल से जब रिटर्न हुए तो उसकी जो मम्मी है जीन, शी टोल्ड सैंडी दैट उनकी जो आंट है रेबेका, शी इज़ लोनसम, शी इज़ फीलिंग लोनसम, मतलब शी इज़ फीलिंग लोनली, क्योंकि उनके जो अंकल है विल हॉस्किंस, ही हैज़ गॉन आउट फॉर ट्रॉलिंग. ट्रॉलिंग का मतलब होता है टू फिशिंग विद अ नेट. ओके, वो नेट लेकर फिशिंग के लिए गए हैं. और एंड शी वॉन्ट्स दैट यू गो एंड स्पेंड द इवनिंग विथ हर. सैंडी को उसने बोला कि आप जाओ आंट रेबेका के पास एंड गो एंड स्पेंड द इवनिंग विथ हर. कैन आई टेक लॉब विथ मी? सैंडी ने पूछा कि मैं लॉब को अपने साथ लेके जाऊँ. You know, Aunt Becky doesn't really like dogs, but I suppose she will have to put up with him. Mrs. Pengelly sighed. Sighed मतलब सैडली बोला उन्होंने कि तुमको मालूम है कि आंट को डॉग्स अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अभी क्या कर सकती है? शी विल हैव टू पुट अप विथ हिम बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक द लॉब अलॉन्ग विथ यू.
Sandy fastens Lob's lead to his collar and set off to Aunt Becky's cottage, which was 5 minutes climb up to the steep hill. So सैंडी ने जो लॉब था उसका कॉलर फासन किया और वहाँ से वो निकल पड़ी आंट बैकी के घर की तरफ, जो 5 मिनट्स का ही वॉक था. मतलब शी हैड टू क्लाइम द स्टीप हिल. द विंड वॉज हाउलिंग थ्रू द shrouds of boats drawn up on the hard. और जो विंड थी वो आवाज़ कर रही थी. इट वॉज काइंड ऑफ हाउलिंग. द श्राउड्स ऑफ बोट, श्राउड्स मतलब जो उसके सेल थे वाइट कलर के. ओके, वो बोट्स के साथ ऐसे वहाँ पे उसके साथ मतलब टकरा के वापस आ रहे थे और उसकी वजह से जो आवाज़ हो रही थी which was howling, right? And it was the sound which came because of the wind that was howling through the shrouds of boat drawn up on the hard. मतलब जो वहाँ पे हार्बर था, शिप हार्बर, राइट, वहाँ पर जो बोट्स रखी हुई थी उसके साथ जो विंड का टकराना था उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रहा था. So students, I hope that you are clear with the first part of this story. We would be moving ahead with the second part of the story in the next video. Take care.